Hello students, today in this lecture we are again going to discuss some applications of Newton's second law of motion. And today students we are going to discuss the apparent weight of a person in a lift. Okay? Now students, now we are going to consider a person standing on the weighing machine which is present in the lift. Now the very basic thing is, why does the weighing machine gives the reading? Now let us take a look at it. Let us suppose it is the ground. Let us suppose it is say the weighing machine. Got it? And let us suppose say this is a person standing on the weighing machine. Now actually what happens? Now since let us suppose say that small m be the mass of this person standing on the weighing machine, then the weight of the person, the weight of the person say mg is exerted on the weighing machine. Whenever the person stands on the weighing machine, then he exerts the weight on the weighing machine, and in response to this weight, this weighing machine exerts the normal reaction. Got it, sense? The normal reaction which is exerted by the weighing machine on the person, it is the reading in the weighing machine. Got it, sense? Clear? The value of G is adjusted in the weighing machine. So since we can say that the reading in the weighing machine, it will be the measure of the normal reaction which is exerted by the weighing machine on the person in a response to the weight of the person which is exerted on the weighing machine. That is, the weight mg, it will be the action. Got it? It will be the action which is exerted by the man on the weighing machine. Now in response to this action, the weighing machine will exert the reaction, and the reaction is said to be the normal reaction. The normal reaction N, it will be the reaction exerted in response to the weight of the person by the weighing machine. बात समझ आ गई बेटा? छोटी सी बात है. तो बेटा weighing machine ने जो फोर्स बंदे के ऊपर लगाया, that will be the reading in the weighing machine, or it will be the weight of the person as recorded by the weighing machine. Clear? So this mg, it will be the true weight. This N, the normal reaction, it will be the reading in the weighing machine. It will be the reading in the weighing machine and is called apparent weight. Of the person. Okay, sirs? So it will be the basic for today's concept, that is the apparent weight of the person in a lift. First of all, copy it down. Yes, sir, it's done. Now, sirs, we are going to consider the person of mass m which is standing on the weighing machine present in the lift. Okay? Now let us suppose that it is a lift, and this lift, it will move either vertically upward or vertically downward, or it will remain at rest. Okay, sirs? We have to discuss the 5 different situations. बात समझ आ गई बेटा? Now sirs, what will happen when the person stands on the weighing machine? Then the weight of the person mg is in the downward direction,
and the weighing machine exerts the normal reaction N on the person. Got it, students? Clear? First of all, you have to copy this figure and note down the consideration. Suppose the person, note it down. Suppose the person having the mass M is standing on the weighing machine present in the lift. Full stop. The weight mg of the person is exerted on the weighing machine and is said to be the true weight. Full stop. In response, the weighing machine exerts the normal reaction N on the person, and it is the reading in the weighing machine or the apparent weight of the person. Okay? Now, since we are going to consider the few different situations, out of which the first situation is the lift accelerates vertically upwards. The lift accelerates vertically upward. Okay, students? बेटा ये वाला फिगर दोबारा से कॉपी करना है. एक्सेलरेशन वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में मार्क करना. ओके, ये फर्स्ट केस. फिगर दोबारा नेक्स्ट लाइन में देखें. सपोज द लिफ्ट accelerates vertically upward. Full stop. Let vector A be the acceleration of the lift which is vertically upward. Next line में लिखें. Using Newton's second law of motion. Using Newton's second law of motion. अब बेटा न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन की इक्वेशन लिखनी है. लास्ट लेक्चर में समझाया था न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन की इक्वेशन कैसे लिखना है. बेटा जो फोर्स एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में उसको पॉजिटिव लेना है, जो फोर्स एक्सेलरेशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में उसको नेगेटिव लेना है, इक्वल्स टू एम. क्लियर? अब ध्यान से देखिए. एक्सेलरेशन वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में है तो बेटा नॉर्मल रिएक्शन पॉजिटिव हो जाएगा, वेट mg नेगेटिव हो जाएगा, इट विल बी इक्वल्स टू m. नाउ वी कैन से that is n minus say mg, it is equals to ma. Clear? Remember, this mg was the true weight, this n was the reading in the weighing machine, that is the apparent weight. So we can say that this n is written as mg plus ma. Clear? अब ध्यान से देखिए बेटा, नॉर्मल रिएक्शन which was the reading in the weighing machine, इसको बोला था apparent weight of the person. बेटा ये जो mg था, this was the true weight of the person. Clear? अब ध्यान से देखिए बेटा, weighing machine में जो रीडिंग है, मतलब the normal reaction n is equal to the sum of the true weight of the person and mass into acceleration. Clear? That is, this ma is added to true weight of the person and the total of these two, it is the reading in the weighing machine. So we can say that the reading in the weighing machine, it will be greater than the true weight of the person. So in this case we can say that the apparent weight of the person will be greater than the true weight. So इस केस को समझ आ गया? कॉपी करें.
Now, since the case second. Lift accelerates vertically downwards. Lift accelerates vertically downward. बेटा ये वाला फिगर दोबारा कॉपी करें. ये वाला फिगर दोबारा कॉपी करें. लिखें. Suppose the lift accelerates vertically downward and has acceleration vector A. First off, फिर से स्टूडेंट्स न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन की इक्वेशन बिल्डअप करेंगे और चेक करेंगे एपरेंट वेट और ट्रू वेट दोनों में से क्या ज्यादा है. समझ आ गई बात. नेक्स्ट लाइन में लिखें. यूजिंग न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन. यूजिंग न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन. अब ध्यान से देखिए बेटा, वेट mg एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में है तो इसलिए इसको पॉजिटिव लेना है. नॉर्मल रिएक्शन n एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में है इसलिए इसको नेगेटिव लेना है. So using Newton's second law of motion, देखिए using Newton's second law of motion, this mg minus n it will be equals to m. Got it? mg minus n is equals to m. Now we can say that this mg minus ma it will be equals to m, or we can say that this n is equals to mg minus ma. Now, clearly, the reading in the weighing machine is equal to the difference of the true weight and MA. मतलब बेटा MA true weight से subtract हुआ, okay, जो भी result आ गया that was the reading in the weighing machine. So clearly we can say that the reading in the weighing machine it will be greater than the true weight. So in this case, the reading in the weighing machine it will be less than the true weight of the person. Got it? So in this case, the apparent weight of the person it will be less than mg, or you can say that the true weight of the person. Got it, sense? बेटा ये सिंपल सी बात समझ आ गई. क्लियर? ना कॉपी करें. Yes, sir, it's done. Now, the situation third. Lift moves with constant velocity. Constant velocity. Either upward और डाउनवर्ड. क्लियर? अब बेटा देखिए, अब की बारी लिफ्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगी, या तो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी या डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी. बेटा जब लिफ्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है देन द एक्सेलरेशन ऑफ द लिफ्ट इज 0. क्लियर? ये स्टेटमेंट लिख लें आप. ये फिगर दोबारा कॉपी करें. नेक्स्ट लाइन में लिखें. When the lift moves with a constant velocity, either upward or vertically downward, the acceleration of the lift is 0. The acceleration of the lift is 0. अब ध्यान से देखिए बेटा, the acceleration of the lift is 0. तो बेटा जब acceleration सिस्टम का 0 है, मूव नहीं कर रहा है या कांस्टेंट वेलोसिटी एग्जिस्ट कर रहा है, तो बेटा किसी भी फोर्स को पॉजिटिव लें, किसी को भी नेगेटिव लें. सो सिंस यूजिंग न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन वी कैन से दैट दिस n माइनस mg इज इक्वल्स टू 0. Why 0? ऐसे लिखें, mass into acceleration. The acceleration is equals to 0, so this n minus mg is equals to 0, so this n is equals to mg. That is, the reading in the weighing machine will be exactly equal to the true weight of the person. Okay? So you can say
that the apparent weight it will be equals to the true weight of the person. The apparent weight will be equals to the true weight of the person. ओके और इसको थर्ड करें, ये थर्ड है. ओके कॉपी करें. डन. Now Now, it is the fourth case. Lift is at rest. बेटा लिफ्ट रेस्ट पे है. बेटा जब लिफ्ट रेस्ट पे है तो भी एक्सेलरेशन जीरो है. क्लियर? बेटा ये फिगर कॉपी दोबारा होगा. नेक्स्ट लाइन में स्टेटमेंट लिखें. When the lift is at rest, then the acceleration of the lift is zero. Then the acceleration of the lift is zero. So using Newton's second law of motion, using Newton's second law of motion, फिर से एक्सेलरेशन जीरो है तो बेटा किसी भी फोर्स को पॉजिटिव ले किसी को भी नेगेटिव ले कोई फर्क नहीं पड़ेगा. तो सिंस n minus a mg is equals to again ma, acceleration is zero, so this n minus a mg is equals to say zero, so this n is equals to mg, that is the reading in the weighing machine is equals to the actual weight of the person, that is the apparent weight is equals to the true weight of the person. Got it? Copy करें. Yes, sir. Now the last case. Free fall of lift. Now let us suppose this. भगवान ना करे कभी ऐसा हो कि बेटा बंदा लिफ्ट के अंदर है, वेइंग मशीन के ऊपर खड़ा हुआ है. अब लिफ्ट ऊपर जा रही थी या नीचे जा रही थी, कहीं भी जा रही थी, अगर कनेक्टिंग केबल टूट जाए, अगर बेटा कनेक्टिंग केबल टूट जाती है तो ये पूरा का पूरा जो चैम्बर है इसका फ्री फॉल होगा. बात समझ आ गई? मतलब वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा और इसके अंदर जो एक्सेलरेशन होगा दैट विल बी इक्वल टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. पल्ले पड़ गई बात? तो फ्री फॉल किसको कहते हैं बेटा? फ्री फॉल किसको कहते हैं? लिखे बेटा, मैं लिखवा रहा हूं. ड्यूरिंग द फ्री फॉल द एक्सेलरेशन of the freely falling body is equal to acceleration due to gravity. Okay, तो free fall में acceleration in magnitude is equals to g and it is vertically downward. Clear? Now next line में लिखें using Newton's second law of motion. अब ध्यान से देखिए बेटा, एक्सेलरेशन है वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इसलिए ट्रू वेट पॉजिटिव, रिएक्शन नेगेटिव. सो यूजिंग न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, यूजिंग न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, mg minus n it is equals to ma, mg minus ma is equals to m, and this a is equals to g. The magnitude of the acceleration of the lift is g, acceleration due to gravity. So this mg minus say mg is equals to n. This implies that this n is equals to 0. This implies that n is equals to 0. Clear? तो बेटा इस केस में क्या होगा? इस केस में बेटा अगर नॉर्मल रिएक्शन 0 है, मतलब रीडिंग
इन द वेइंग मशीन जीरो है। एक्चुअली क्या हुआ कि बेटा देखिए, अब वेइंग मशीन और पर्सन दोनों आपस में कांटेक्ट में है और दोनों का फ्री फॉल हो रहा है, क्योंकि दोनों लिफ्ट के अंदर थे और लिफ्ट का फ्री फॉल था। तो बेटा जब कभी भी कोई भी दो बॉडीज आपस में कांटेक्ट में हो और उनका फ्री फॉल हो, तो दोनों बॉडीज के बीच में जो कांटेक्ट फोर्स होता है वो जीरो हो जाता है। क्लियर हो गई बात? समझाया था ना, नॉर्मल रिएक्शन एक कांटेक्ट फोर्स होता है। अब क्योंकि स्टूडेंट्स ऐसा क्यों हुआ कि नॉर्मल रिएक्शन जीरो हो गया या रीडिंग इन द वेइंग मशीन जीरो हो गया? बेटा ये जो बंदा वेइंग मशीन के कांटेक्ट में है, अब बेटा बंदे ने, हम बोलेंगे प्रैक्टिकली बोलेंगे कि बंदे ने वेइंग मशीन के ऊपर कोई फोर्स नहीं लगाया। बंदे ने अगर वेइंग मशीन के ऊपर कोई फोर्स नहीं लगाया तो स्टूडेंट्स वेइंग मशीन ने भी बंदे के ऊपर कोई फोर्स नहीं लगाया। क्लियर हो गई बात? तो ये एक इंपॉर्टेंट 1 मार्कर क्वेश्चन बनेगा। कैसे बनेगा? बेटा कोई भी दो बॉडीज ए और बी आपस में कांटेक्ट में होंगी और उनका फ्री फॉल होगा फ्रॉम एनी हाइट। पूछेगा व्हाट विल बी द फोर्स एक्सर्टेड बाय ए ऑन बी और बाय बी ऑन ए। सीधा न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन यूज करना है, ये वाला कैलकुलेशन यूज करना है, ये वाला कैलकुलेशन यूज करना है। दोनों के बीच में फोर्सेस F1 और F2 कर लेना। F1 माइनस F2 इज इक्वल टू ma, a इज इक्वल टू 0, सो F1 इक्वल टू F2। समझ आ गई ये बात? तो इस वाले केस में बेटा क्या आ जाएगा? इस वाले केस में द एपरेंट वेट ऑफ द पर्सन इट विल बी इक्वल टू 0। द एपरेंट वेट ऑफ द पर्सन इज इक्वल टू 0। गॉट इट? कॉपी करें। यस सर, ये सिंपल सी बात समझ आ गई ना? तो ये बेटा एपरेंट वेट का कॉन्सेप्ट तो कंप्लीट हो गया। अब ऐसा करते हैं, कनेक्टेड मोशन की एक प्रॉब्लम और कर लेते हैं। लास्ट टाइम मैंने आपको कनेक्टेड मोशन की प्रॉब्लम्स करने सिखाई थी, एक प्रॉब्लम दोबारा करते हैं आज। क्लियर? देखिए मैं आपको 3 डिफरेंट सिचुएशंस देता हूं, आपने घर पे प्रैक्टिस करना है। क्लियर? लेट अस सपोज प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट। बेटा ये कोई एक टेबल है ऑन द ग्राउंड, टेबल है ऑन द ग्राउंड। बेटा टेबल पे यहां पर ये ब्लॉक ए, यहां पर पुली और ये ब्लॉक बी। क्लियर? स्विच जस्ट आफ्टर द रिलीज ये टू कैलकुलेट द टेंशन। हर क्वेश्चन में करना क्या? कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड of tension and acceleration of each block। बात समझ आ गई? बेटा मास ऑफ द ब्लॉक है 5 किलोग्राम लेना है और मास ऑफ द ब्लॉक बी 2 किलोग्राम लेना है। ठीक है? एंड ऑल द सर्फेसेस आर स्मूथ, ऑल द सर्फेसेस आर स्मूथ। स्मूथ मतलब फ्रिक्शनलेस। क्लियर? तो ये फर्स्ट सिचुएशन है, टेंशन और एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है। इट इज द फर्स्ट वन। बेटा just after the release what will be the tension in the string and what will be the acceleration of each block? Clear? It is the situation second।
Let us say the block A and let us say the block B, the string. बेटा दोनों ब्लॉक्स A और B एक स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, जैसे यहां पर ब्लॉक्स A और B एक स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, एंड देन द स्ट्रिंग इज पास ओवर द पुली. इंफॉर्मेशन ये लेनी है, मास ऑफ द ब्लॉक A 5 किलोग्राम, मास ऑफ द ब्लॉक B 2 किलोग्राम. Let us suppose that this angle is equal to say 30 degrees and this angle is equal to say 60 degrees. ठीक है, यहां पे थोड़ी सी अकल लगानी पड़ेगी. यहां पर कंपोनेंट्स ऑफ द वेट लेने पड़ेंगे, उससे आपको पता लगेगा. समझ आ गई बात? ठीक है, ओके. नाउ द थर्ड सिचुएशन इज यहां पर बेटा ब्लॉक ए इंक्लाइंड सरफेस पर है, ब्लॉक बी हवा में लटका हुआ है, वर्टिकल सरफेस को टच नहीं कर रहा है. द टू ब्लॉक्स आर कनेक्टेड विद ईच अदर विद द हेल्प ऑफ अ स्ट्रिंग व्हिच इज पास ओवर द पुली. ठीक है सर, तो स्ट्रिंग्स और पुलीज मासलेस है. लेट अस सपोज दिस एंगल इज इक्वल टू से 30 डिग्रीज. क्लियर? तो जस्ट आफ्टर द रिलीज आपने क्या करना है, आपने हर ब्लॉक का एक्सेलरेशन और स्ट्रिंग के अंदर टेंशन कैलकुलेट करना है. क्लियर? एक काम करते हैं, सिंस मैं आपको इन तीनों प्रॉब्लम्स में स्टार्ट दे देता हूं. क्लियर? F इक्वल्स टू ma तक पहुंचा देता हूं. टोटल 6 स्टेप थे, पहले 5 स्टेप कर देता हूं क्योंकि सरफेस स्मूथ है, तो छठे स्टेप की जरूरत नहीं पड़ने वाली है. क्लियर? तो इक्वेशंस बिल्डअप करके छोड़ दूंगा, कैलकुलेशंस आप खुद कर लेंगे. इससे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन डिफरेंट सिचुएशंस में कैसे इंप्लीमेंट करना है ये क्लियर हो जाएगा. बात समझ आ गई? तो एक काम करें, पहले तो कॉपी कर लें इनको, मैं थोड़ा टाइम दे रहा हूं आपको, कॉपी करें और मैं फिर एक एक का स्टार्ट दे देता हूं. Yes, sir, it's done. अब बेटा ध्यान से देखिए, सबसे पहले बेटा स्टेप वाइज अप्रोच याद रखें. विदाउट स्टेप वाइज अप्रोच आप अगर काम करेंगे तो बाउंस हो जाएंगे, नहीं होगा. ठीक है, चलिए सबसे पहले ब्लॉक बी को अगर सिस्टम कंसिडर किया जाए तो बेटा ब्लॉक बी पर वेट m2g लग गया डाउनवर्ड डायरेक्शन में, टेंशन T लग गया अपवर्ड डायरेक्शन में. क्लियर? सबसे पहले वेट मार्क करना है. अब क्योंकि ब्लॉक बी स्ट्रिंग के कांटेक्ट में है तो स्ट्रिंग टेंशन T लगाएगा. क्लियर? अब ध्यान से देखिए, मास ऑफ द ब्लॉक A is supposed to m1, so the weight m1 is vertically downward. अब ब्लॉक टेबल की सरफेस के ऊपर है तो टेबल इसके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन n लगाएगी. क्लियर? और ब्लॉक ए स्ट्रिंग के कांटेक्ट में है तो स्ट्रिंग टेंशन T लगाएगा. अब बेटा आपने हमेशा मैंने लास्ट टाइम भी बताया था बेटा, जस्ट आफ्टर द रिलीज देखना है कि पुलिंग फोर्स किधर है. पुलिंग फोर्स किधर है मतलब बेटा पुलिंग फोर्स किसको कहते हैं? पुलिंग फोर्स वाला फोर्स होता है जिसकी वजह से
सिस्टम में जितने भी पार्ट्स इन्वॉल्व हैं, गिवन प्रॉब्लम को अगर हम सिस्टम बोलते हैं, तो अब इस प्रॉब्लम में हमें एक टेबल दिखाई दे रहा है, एक ब्लॉक ए दिखाई दे रहा है और एक ब्लॉक बी दिखाई दे रहा है। तो बेटा जस्ट आफ्टर द रिलीज हमें सिस्टम में पुलिंग फोर्स देखना होता है, मतलब वो वाला फोर्स जिसकी वजह से मोशन की पॉसिबिलिटी है। क्लियर? अब ध्यान से देखिए, अब ध्यान से देखिए बेटा, अब ध्यान से देखिए बेटा, ब्लॉक ए को देखें सिर्फ, वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन, नॉर्मल एक्शन अपवर्ड डायरेक्शन। तो बेटा ये दोनों फोर्सेस तो एक दूसरे को बैलेंस कर सकती हैं। ब्लॉक ए के ऊपर टेंशन टी दिखाई दे रहा है जो कि राइट साइड में। बेटा ब्लॉक ए के ऊपर बैकवर्ड डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं दिखाई दे रहा, तो ब्लॉक ए के ऊपर नेट फोर्स हॉरिजॉन्टल में राइट साइड पे दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब बेटा ब्लॉक ए की मोशन की पॉसिबिलिटी किधर होगी? राइट साइड में। समझ आ गई ये बात समझ आ गई? इतना काम क्लियर हो गया? तो स्टूडेंट्स ब्लॉक ए का जो एक्सेलरेशन है, ब्लॉक ए का जो एक्सेलरेशन है, ब्लॉक ए का जो एक्सेलरेशन है, ब्लॉक ए की जो एक्सेलरेशन होगी वो टुवर्ड्स राइट। अब बेटा अगर ब्लॉक ए राइट साइड में जाएगा तो ब्लॉक बी किधर जाएगा? ब्लॉक बी डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, तो ब्लॉक बी डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। समझ आ गई ये बात? इतना काम क्लियर हो गया? ओके क्लियर? अब जैसा कि मैंने आपको लास्ट टाइम समझाया था कि बेटा ये जो टेंशन होती है ये इंटरनल फोर्स होती है। क्या होती है? इंटरनल फोर्स। अब बेटा देखिए, अगर ए और बी दोनों को एज अ सिस्टम माना जाए, ए और बी दोनों को ऐसा सिस्टम माना जाए, क्लियर? तो आप क्या कहेंगे कि ये इंटरनल फोर्सेस पेयर्स में कैंसल आउट हो जाएंगे। क्लियर हो गई बात? पल्ले पड़ी बात? तो बेटा नेट पुलिंग फोर्स कितना लगेगा? नेट पुलिंग फोर्स इट विल बी M2G ओनली। बेटा ये जो M2G है इसकी वजह से मोशन एग्जिस्ट करेगा, तो हमेशा पुलिंग फोर्स पहले आइडेंटिफाई करें। क्लियर हो गई बात? समझ गए बात को? अब स्टूडेंट्स स्टेप वाइज अप्रोच यूज करते हैं। अब करेंगे स्टेप वाइज अप्रोच फॉर द ब्लॉक बी एंड द ब्लॉक ए। पहले स्टार्ट देने से पहले हमेशा पुलिंग फोर्स के बारे में सोचिए, मोशन के बारे में सोचिए। क्लियर हो गई बात? फिर इसके बाद वो 6 के 6 स्टेप्स आपने यूज करने। समझ आ गई बात? पहले ब्लॉक बी को अगर देखते हैं, ब्लॉक बी को अगर देखते हैं तो सिर्फ ब्लॉक बी को देखिए। फोर्सेस आपको दिखाई देगी, टेंशन टी अपवर्ड, weight M2G downward, acceleration downward. So this M2G is in the direction of acceleration, so it is taken positive. Tension acceleration के opposite है तो negative। बेटा कोई फोर्स ऐसी नहीं है जो एक्सेलरेशन के साथ एक्यूट या ऑब्ट्यूज एंगल बनाए, तो कंपोनेंट वाला पॉइंट खत्म हो गया। तो यूसेंस न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन का इक्वेशन क्या हो जाएगा? M2G minus T it will be equals to M2E। बात समझ आ गई? ओके अब अगर ब्लॉक ए को देखें, ब्लॉक ए को देखिए बेटा, जब ब्लॉक ए को देख रहे हैं याद रखें, जब आप सिस्टम को देखते हैं तो बेटा बॉडी के सारे कॉन्टेक्ट्स आपको डिफाइन करने होते हैं। कैसे है बॉडी, कैसे रखी हुई। अब बेटा ब्लॉक ए हमें टेबल पे दिखाई दे रहा था, ब्लॉक ए हमें टेबल पर दिखाई दे रहा था। जो फोर्सेस लग रही हैं दे आर M1G, the normal action N, the tension T and the acceleration is towards right. Clear? तो सर जब आप वर्टिकल फोर्सेस को देखते हैं, वर्टिकल फोर्सेस को, सिक्स्थ पॉइंट की बात कर रहा हूं, सिक्स्थ पॉइंट की बात कर रहा हूं, एक्सेलरेशन के वर्टिकल डायरेक्शन में जो फोर्सेस हैं वो एक दूसरे को बैलेंस करेगी। क्लियर हो गई बात? सो वी कैन से दैट दिस N इज इक्वल्स टू M1G। एक ये इक्वेशन आएगा। दूसरा इक्वेशन, अब आप हॉरिजॉन्टल में फोर्सेस को देखिए, ठीक है ना? लास्ट वाले जो 2 पॉइंट्स थे, अब आपको ब्लॉक ए के ऊपर सिर्फ टेंशन लगता हुआ दिखाई दे रहा है। सो दिस टेंशन टी इट विल बी इक्वल्स टू M1A। क्लियर? तो ब्लॉक ए के लिए ये दो इक्वेशंस आएंगी। लेट अस कॉल दिस एज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट, let us call this as the equation number second and this as the equation number third। ये सिंपल सी बात समझ आ गई? इतना काम क्लियर हो गया? ओके ओके ओके। सो व्हाट यू कैन से,
अब बेटा टेंशन का वैल्यू यहां पे डाल के सॉल्व किया जा सकता है, टेंशन का वैल्यू यहां पर डालेंगे सॉल्व किया जा सकता है। सो दिस इंप्लाइज दैट m2g minus m1a is equals to m2a, that is this m2g is equals to m1 plus say m2 multiplied with a. Okay, so this a is equals to m2 divided by m1 plus m2 multiplied with g. एक्सप्रेशन मिल जाएगा। एक्सप्रेशन मिलने के बाद यहां पर इक्वेशन नंबर 3 में वैल्यू डालेंगे, टेंशन मिल जाएगा। क्लियर? ऑलमोस्ट मैंने कर दिया, बस वैल्यूज डाल के आपने कैलकुलेट कर कॉपी करना। अब स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखिए। स्टूडेंट्स यहां पर एंगल 30 डिग्री था, यहां पर एंगल 60 डिग्री था। क्लियर? अब बेटा मास ऑफ द ब्लॉक ए कितना दिखाई दे रहा है? मास ऑफ द ब्लॉक ए इज 5 किलोग्राम, मास ऑफ द ब्लॉक बी इज 2 किलोग्राम। तो सबसे पहले पुलिंग फोर्स के बारे में देखेंगे। पुलिंग फोर्स, टेंशन इंटरनल फोर्सेस होगी, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो सबसे पहले क्या करेंगे? वेट m1g वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में मार्क हो जाएगा, यहां पर वेट m2g वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में मार्क हो जाएगा। क्लियर? अब बेटा क्वेश्चन एग्जिस्ट करता है, चलिए देख लेते हैं बड़ी। टेंशन T इधर मार्क हो जाएगा। अब क्वेश्चन एग्जिस्ट करता है कि ब्लॉक बी नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से ब्लॉक बी डाउन द इंक्लाइन प्लेन मूव करेगा या अप द इंक्लाइन प्लेन मूव करेगा। बात समझ आ गई? तो अब ध्यान से देखिए, अब हम क्या करेंगे? अब हम वेट के कंपोनेंट्स लेने वाले हैं। अगर बेटा ये वाला एंगल 30 है, क्लियर? ये हो गए रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कैसे लिए जाते हैं? बेटा इंक्लाइन प्लेन के केस में, इंक्लाइन प्लेन के केस में जो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हैं वो along the inclined surface and perpendicular to inclined surface लिए जाते हैं। बात समझ आ गई बेटा? क्लियर हो गई बात? जब रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स लेंगे आप तो एक कंपोनेंट सरफेस के इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर, फिर उसके अकॉर्डिंग जो दूसरा कंपोनेंट होगा दैट विल बी अलोंग द इंक्लाइन। इट कैन बी इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, इट कैन बी इन द अपवर्ड डायरेक्शन डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। जैसे यहां पर ध्यान से देखिए बेटा, जो फोर्स है वो है m1g। तो ये अगर हम फोर्स m1g के कंपोनेंट्स ले रहे हैं तो ऑफ कोर्स ये बीच में आएगा दोनों कंपोनेंट्स के। अगर दोनों कंपोनेंट्स में से कोई एक कंपोनेंट अगर इधर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हो गया तो दूसरा कंपोनेंट डाउन द इंक्लाइन प्लेन। समझ आ गई ये बात? अब ध्यान से देखिए, अब अगर ये वाला एंगल 30 है तो हमेशा याद रखें कि ये वाला एंगल 30 होगा। मतलब फोर्स वेक्टर और वो वाला कंपोनेंट जो सरफेस के परपेंडिकुलर है, इन दोनों के बीच में एंगल हमेशा एंगल ऑफ द इंक्लाइंड सरफेस होता है। मैथमेटिकली इसको प्रूव किया जा सकता है। ठीक है, दो ट्राइंगल्स बनेंगे, दो ट्राइंगल्स लगेंगे, कॉन्ग्रुएंसी प्रूव कर लेना। अब बेटा कंपोनेंट्स लेते हैं तो m1g cos 30 यहां पर आ जाएगा और m1g sin 30 यहां पर आ जाएगा। क्लियर हो गई बात? जिस फोर्स के आप कंपोनेंट ले चुके हैं उसे भूलना है। बात समझ आ गई? इसी तरीके से वेट m2g के कंपोनेंट्स लेंगे। पहला कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइंड सरफेस मार्क किया। अब बेटा अगर पहला कंपोनेंट हमने इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर मार्क किया तो दूसरा कंपोनेंट होगा दैट विल बी अलोंग द इंक्लाइन प्लेन।
अब ये वाला एंगल 60 है तो स्टूडेंट्स ये वाला एंगल 60 हो जाएगा। बात समझ आ गई? अब अगर ये वाला एंगल 60 था तो ये वाला एंगल 60 हो गया, तो यहां पर जो कंपोनेंट आएगा दैट विल बी m2g cos 60 डिग्री। ठीक है, और बेटा ये वाला जो कंपोनेंट होगा इट विल बी m2g sin 60 डिग्री। ठीक है, समझ आ गई ये बात? बेटा इंक्लाइन प्लेन में रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कैसे लिए जाते हैं समझ आ गया? जल्दी से पहले कॉपी करें, फिर मेरे को मिटाना है। बेटा बात समझ आ गई? बात समझ आ गई? अब बेटा देखिए, ब्लॉक ए इस इंक्लाइन सरफेस पर है। ब्लॉक ए ने इंक्लाइन पर जो फोर्स लगाया दैट इज m1g cos 30। तो ये जो इंक्लाइन सरफेस होगा ये इस ब्लॉक ए के ऊपर जो नॉर्मल लगाएगा, जो रिएक्शन देगा दैट इज n1 परपेंडिकुलर टू द सरफेस। फिर से दोबारा देखिए, ब्लॉक बी को देखिए बेटा, वेट का कंपोनेंट, ब्लॉक बी का वेट का कंपोनेंट जो इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है दैट इज m2g cos 60। तो जो इंक्लाइन प्लेन है वो ब्लॉक बी के ऊपर जो रिएक्शन देगा दैट इज n2 इन द डायरेक्शन। समझ आ गई बात? अब क्योंकि सरफेसेस सारी स्मूथ हैं तो स्टूडेंट्स ये नॉर्मल रिएक्शन और वो वाले कंपोनेंट वेट के जो इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर हैं इनका कोई रोल नहीं है। क्यों रोल नहीं है? क्योंकि ये एक्सेलरेशन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्सेस आएंगी, एक दूसरे को बैलेंस करेंगी। समझ आ गई बात? ठीक है, अब मैं आपको सिखाता हूं ये पुलिंग फोर्स का चक्कर क्या है। पुलिंग फोर्स से डिफाइन किया जाता है कि सिस्टम में किस पार्ट का एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में होगा। मतलब एक बारी अगर पुलिंग फोर्स का आइडिया मिल गया कि कितना है मैग्नीट्यूड वाइज, ओके, और उसका डायरेक्शन क्या है, क्लियर हो गई बात? ठीक है, ओके। फिर उसके बाद आप डायरेक्शन ऑफ मोशन आइडेंटिफाई कर लेंगे, उसके बाद आप डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन मार्क कर लेंगे। अब ध्यान से देखिए बेटा, देखिए अब अगर ब्लॉक ए को देखें, क्लियर, ब्लॉक ए कैसे मूव करेगा, या तो ऊपर जाएगा या नीचे आएगा। ठीक है, अब ब्लॉक ए के ऊपर लग रहा है टेंशन टी। अब टेंशन टी तो इंटरनल फोर्स है, टेंशन टी तो इंटरनल फोर्स है तो इसको काउंट नहीं करेंगे। टेंशन टी पर, सॉरी, टेंशन टी इंटरनल फोर्स है, इसको काउंट नहीं करेंगे। तो ब्लॉक ए पर वेट का जो कंपोनेंट लग रहा है दैट इज m1g sin 30। तो बेटा m1g sin 30 को सॉल्व करें। m1 था 5, g का वैल्यू g रहने देते हैं, sin 30 होता है 1/2, तो कितना हो गया 5/2g। समझ आ गई ये बात? इतना काम क्लियर हो गया? तो बेटा ब्लॉक ए पर जो फोर्स डाउन द इंक्लाइन प्लेन लग रहा है दैट इज 5/2g। पल्ले पड़ गई बात? क्लियर हो गई बात? अब ध्यान से देखिए, अब ऐसे ही ब्लॉक बी को देखें, ये किसके लिए, ये ब्लॉक ए के लिए। अब ऐसे ब्लॉक बी को देखें, ठीक है बेटा, टेंशन फिर से दिखाई दे रहा है, अप द इंक्लाइन प्लेन। अब ब्लॉक बी या तो अप द इंक्लाइन प्लेन मूव करेगा या डाउन द इंक्लाइन प्लेन मूव करेगा, हमें नहीं पता किधर मूव करेगा। तो सिर्फ डाउन द इंक्लाइन प्लेन जो फोर्स लग रहा है इट इज m2g sin 60। टेंशन इंटरनल फोर्स है, छोड़ दे उसको। तो ब्लॉक बी m2g sin 60 की बात करें, क्लियर? m2 was 2, g को g रहने दे, sin 60 का वैल्यू लगाएं, इट इज √3/2। तो कैंसिल करें तो ये निकल करके आ गया g रूट। अब बेटा देखिए, अब g √3 बड़ा है या 5/2g बड़ा है? 5/2 होता है 2.5 और ये हो गया 1.732। अब हमें पता है कि 5/2g is greater than g by √3, क्लियर? ओके, इसलिए सिस्टम पर इंटरनल फोर्सेस के अलावा जो वेट के कंपोनेंट्स लगेंगे बेटा, इधर कंपोनेंट ज्यादा है, इधर कंपोनेंट कम है मैग्नीट्यूड वाइज, तो सिस्टम को जैसे ही रिलीज करेंगे तो बेटा जिधर फोर्स ज्यादा है मोशन उस साइड पे डोमिनेट करेगा। क्लियर हो गई बात? अब देखिए 5/2g g √3 से ज्यादा है तो वी आर गोइंग टू से
कि बेटा ये वाले फोर्स का वैल्यू m1g sin 30 का वैल्यू m2g sin 60 से ज्यादा है, इसलिए A और B एज अ सिस्टम कैसे मूव करेगा, A जाएगा डाउन द इंक्लाइन प्लेन और B जाएगा अप द इंक्लाइन प्लेन। समझ आ गई ये बात? बेटा ये होता है पुलिंग फोर्स का कॉन्सेप्ट। पूरा क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले फोर्सेस सारी मार्क की जाती हैं। फोर्सेस मार्क करने के बाद पहले ये डिसाइड करना है कि जैसे ही सिस्टम को रिलीज करते हैं, रिलीज करने के जस्ट बाद सिस्टम के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं उनका मोशन पॉसिबली किस डायरेक्शन में होगा। समझ आ गई बात? समझ आ गई बात? क्लियर? ओके। तो अब वी आर गोइंग टू मार्क द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। ब्लॉक ए डाउन द इंक्लाइन प्लेन मूव करेगा और ब्लॉक बी अप द इंक्लाइन प्लेन मूव करेगा। सिंपल सी बात समझ आ गई? तो सबसे पहले बेटा पुलिंग फोर्स का कॉन्सेप्ट लगाना है, नेट फोर्स लगाना है। समझ आ गई ये बात? क्लियर हो गई बात? जिसकी वजह से मोशन हो रहा है। पल्ले पड़ गई बात? ये कॉपी कर ले, कॉपी कर ले। फिर न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन की इक्वेशंस बिल्डअप करा देता हूं ब्लॉक ए और ब्लॉक बी के लिए, और फिर बस इतना ही करेंगे। जो थर्ड क्वेश्चन है वो आप खुद कर लेंगे, आसान है, वो हो जाएगा। तो बेटा ब्लॉक ए को देखें। पहले हमने ब्लॉक ए की बात की है, तो ब्लॉक ए हमारा सिस्टम हो गया। बताया था जैसा कॉन्फ़िगरेशन है बॉडी का वैसा मेंटेन किया जाता है। टेंशन टी लग रहा है, ठीक है बेटा। वेट के कंपोनेंट ले चुके थे, तो अब हम कंपोनेंट्स को सिर्फ मार्क करेंगे। क्लियर हो गई बात? अब देखिए जो फोर्सेस पेरेंट फिगर में मार्क्ड है, टेंशन टी, नॉर्मल एक्शन N1, वेट M1g। इसके बाद हमने वेट के कंपोनेंट ले लिए। जिस फोर्स के कंपोनेंट ले चुके हैं उसको छोड़ना है, उसके कंपोनेंट्स को कंसीडर करना। तो इन टोटल 4 फोर्सेस आ गई। एक्सेलरेशन किधर मार्क्ड है? एक्सेलरेशन इज से A एंड इट इज डाउन द इंक्लाइन प्लेन। क्लियर? तो स्टूडेंट्स बेटा एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में जो फोर्स है इट इज m1g sin 30। टेंशन टी एक्सेलरेशन के ऑपोजिट है, सो m1g sin 30 माइनस t इज इक्वल्स टू m1a। क्लियर हो गई बात? क्लियर हो गई बात? अब ध्यान से देखिए, यहां पर वेट को देखिए। मुझे कैसे एडवांस से पता लगा था मुझे वेट के कंपोनेंट लेने, क्योंकि ब्लॉक के या तो अप द इंक्लाइन प्लेन जाएगा या डाउन द इंक्लाइन प्लेन जाएगा, जैसे मर्जी जाए। तो ये जो वेट था m1g, ये एक्सेलरेशन के साथ या तो एक्यूट एंगल बनाएगा या फिर ऑब्ट्यूज एंगल बनाएगा, तो इसलिए एडवांस में मैंने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स लिए थे। सेम स्टोरी, ब्लॉक बी का वेट मार्क करने के बाद मुझे ये पता था कि ब्लॉक बी या तो डाउन द इंक्लाइन प्लेन जाएगा या फिर अप द इंक्लाइन प्लेन जाएगा, जैसे मर्जी जाए। स्वेल्स वेट और एक्सेलरेशन के बीच में या तो एक्यूट एंगल आएगा या ऑब्ट्यूज एंगल आएगा, इसलिए हमने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स पहले से ले लिए थे। समझ आ गई बात? तो ये इक्वेशन आ गई ब्लॉक ए के लिए, पल्ले पड़ गई बात। अब इसी तरीके से ब्लॉक बी की बात करें। वी आर गोइंग टू कॉल दिस एज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये ब्लॉक बी। स्ट्रेस देखिए, टेंशन टी किधर लग रहा है? टेंशन टी लग रहा है अप द इंक्लाइन प्लेन। वेट लग रहा था वर्टिकली डाउनवर्ड। M2g रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स लिए थे, तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स मार्क कर रहे हैं। ये एंगल 60 था, इट इज M2g sin 60 एंड इट इज M2g cos 60। बेटा जो नॉर्मल रिएक्शन है दैट इज सेकंड। एक्सेलरेशन कैसे था? ब्लॉक ए अगर नीचे आया था तो ब्लॉक बी ऊपर गया था। एक्सेलरेशन जैसे और ब्लॉक बी अप द इंक्लाइन प्लेन मूव कर रहा है। क्लियर हो गई बात? तो स्ट्रेस ओके, टेंशन पॉजिटिव और M2g sin 60 नेगेटिव। टेंशन T माइनस M2g sin
टेंशन T minus M2G sin 60 is equals to M2A. ये इक्वेशन तो इस इक्वेशन नंबर सेकंड है। अब इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। जब दोनों को ऐड करेंगे टेंशन कैंसिल आउट हो जाएगा, एक्सलेरेशन का वैल्यू मिल जाएगा। फिर जब एक्सलेरेशन का वैल्यू मिल जाएगा किसी भी एक इक्वेशन में वैल्यू डाल दें, सॉल्व कर दें। क्लियर? अब बेटा देखिए, इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर जो फोर्सेस है, जैसे इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर फोर्स N1 दिखाई दे रहा है और M1G cos 30 दिखाई दे रहा है, कंसीडर नहीं की। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट्स एक्सेलरेशन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन जो फोर्सेस है वो एक दूसरे को बैलेंस करती है। मतलब दिस N1 इट विल बी इक्वल टू M1G cos 30। अब क्योंकि सरफेस स्मूथ है तो इस इक्वेशन का कोई यूज नहीं है। अगर सरफेस ये स्मूथ ना होता तो फ्रिक्शनल फोर्सेस होती। फ्रिक्शनल फोर्सेस को कैलकुलेट करने के लिए हमें इन फोर्सेस को कंसीडर करना पड़ता, परपेंडिकुलर फोर्सेस को। तो अभी सरफेस स्मूथ है तो इसलिए इनको हमने कंसीडर नहीं किया, छोड़ दिया। ठीक है, समझ आ गई बात? जल्दी से कॉपी कर लें। ओके, दोनों इक्वेशंस को ऐड करना, ऐड करेंगे तो T से T कैंसिल हो जाएगा, एक्सेलरेशन का वैल्यू मिलेगा। एक्सेलरेशन का जो भी वैल्यू मिल जाए, दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन जो आपको अच्छी लगे उसमें डालना, सॉल्व कर देना। ठीक है, क्लियर? एक बार कॉपी कर लें। Yes, so it's done. So it is all for today, and rest of the concepts we will discuss in the next lecture. Okay.